Hello dear students, welcome in science class. I hope you all are safe and doing well at your places. So students, in the previous video we have started with the chapter 8, okay, how do organisms reproduce, and we have studied about the replication of DNA, and during at that time there are some errors, okay, and that errors leads to variations, and we have studied about the importance of variations. Okay, so in today's video we will discuss more about the asexual reproduction, that is the type under the topic types of reproduction. Okay, before that I would like to share the learning outcomes that you are going to achieve after completing this topic. You will be able to differentiate between two types of reproduction, that is asexual and sexual. You will be able to list down various types of asexual reproduction, compare binary and multiple fission, discriminate fragmentation and regeneration, or predict the type of asexual reproduction in yeast and hydra, and also you will be able to summarize the spore formation in bread mold. Okay, so let's start with the today's session. So the first is types of reproduction. Okay, this we have studied in 8th standard also. There are two types of reproduction, one is asexual and second one is sexual. Asexual means without the involvement of sexes. Okay, that means in this only single parent is involved, and here no formation of gametes takes place, means without meiosis the formation of gametes do not take place here. The fertilization process do not takes place, and here the transfer of genetic material between individuals also do not takes place. So that is the asexual reproduction. So how will you define it? We can define it as the production of offsprings by a single parent without meiosis, means without the formation of gametes, fertilization and transfer of genetic materials. So that kind of reproduction is called asexual reproduction. And opposite to this, the sexual reproduction means the production of the offspring by the fusion of the gametes, and that gametes usually produced by male and female. Okay, means here the two parents are involved, one is the male and other one is female. So that means here the fertilization also takes place, and the transfer of genetic material will also takes place. This asexual reproduction, students, mostly occur in primitive organisms or lower organisms, you can say unicellular organisms like bacteria, protozoans, etc. Some plants like algae, fungi, bryophytes, and certain multicellular organisms like sponges and hydra. And the sexual reproduction takes place in higher organisms, flowering plants, animals, including human beings also. Okay, friends, in this asexual reproduction, the young one or the offspring receives all its genes from the parent cell. ओके, जितने भी उसमें सारे जीन्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे? एक ही पेरेंट से आएंगे. सो देयर आर लेस चांसेस ऑफ वेरिएशन. दैट मीन्स द न्यू ऑफस्प्रिंग और द न्यू जनरेशन, जो न्यू सेल बनेगा, दैट इज सिमिलर टू द पेरेंट सेल. ओके, वो उसकी क्या होगा? एक तरह से डुप्लीकेट कॉपी होगा. ओके, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज सिमिलर टू द पेरेंट सेल. बट व्हाट हैपन्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? देयर इज द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम द मेल एंड द फीमेल, means there are more chances of variations. So we can say that the new offspring or the offsprings that are identical to the parent cell. Okay, identical means they are having some differences. उनके जैसे तो हैं पर उनमें कुछ differences हैं. Okay, that are variations. So now next move to the various types of the asexual reproduction. One by one we will understand all the types. Okay, so first is fission.
Fission means splitting, टूट जाना. The splitting of unicellular organism into two or more than two separate daughter cells is called fission. Okay, दो या दो से ज़्यादा cells में टूट जाना by the unicellular organism is called fission. अगर दो सेल में डिवाइड होता है तो देन इट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन. फिर आप उसको बाइनरी फिशन कहते हैं. इफ इट डिवाइड्स मल्टीपल टाइम्स और सेवरल टाइम्स वो डिवाइड करता है और बहुत सारे न्यू डॉटर सेल्स बनाता है ऑफ इक्वल साइज, देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन. Okay, so we can define binary fission as division of parent cell into two small nearly equal sized identical daughter cells. Okay, that is called binary fission. Multiple fission is a division of the parent cell into several small nearly equal sized daughter cells. That is called multiple fission. Binary fission, students, takes place in bacteria, protozoa. In protozoa, it includes amoeba, paramecium, okay, in which the unicellular organism divide into two daughter cells. Okay, so let's see the binary fission in amoeba. So students, this diagram shows the division in amoeba. Okay, as you all know, amoeba do not have any definite shape, okay, due to the presence of pseudopodia. So what happens at the time of reproduction, जब वो सेल डिवाइड करने के लिए रेडी हो जाता है, then what happens, it absorbs its pseudopodia. ठीक है, वो अपने pseudopodia को absorb कर लेता है and becomes spherical in its shape. So this is the parent amoeba. Okay, as I told you, at the time of cell division, दो divisions होती हैं. One is of the nucleus and one is of cytoplasm. So first nucleus starts dividing. Okay, always remember that हमेशा nucleus की division पहले start होती है. So this is the nucleus. So क्या होता है? Elongation of the nucleus first takes place. ठीक है, पहले न्यूक्लियस की डिवीजन स्टार्ट होएगी. धीरे धीरे क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्म है इसकी बाहर से कंस्ट्रिक्शन अंदर की तरफ को बननी शुरू होती है. मीन्स द साइटोप्लाज्म और द सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड. अंदर की तरफ को जो है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा. सो इस तरह से ये डिवीजन हो जाएगी एंड द अमीबा डिवाइड्स इनटू टू. ओके, two division of the nucleus and division of the cytoplasm take place, and here these are the two daughter cells. Understood? This diagram of showing binary fission in amoeba is also there in your book, students, but the labeling is not there, so you can label the diagram accordingly. So आप इस तरह से आप उसको लेबल कर सकते हैं. दैट इज द न्यूक्लियस, इलोंगेशन ऑफ द न्यूक्लियस, हियर द साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रिक्शन. ठीक है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, देन इट फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस. ठीक है, कई बार बेटे पेपर में डायग्राम दिया होता है और यू हैव टू लेबल इट. ओके, सो you must label the diagram. Now let's watch the video for more clarity of fission in amoeba. Amoeba reproduces asexually by binary fission. Binary fission is a type of asexual reproduction in which the fully grown parent cell splits into two halves, producing two new daughter cells. At the time of binary fission, the amoeba withdraws pseudopodia and becomes spherical in shape. The nucleus splits longitudinally and divides into two daughter nuclei. These daughter nuclei move towards opposite poles. This is followed by the elongation of the parent cell. A fissure appears in the middle of the cytoplasm between the two daughter nuclei, dividing the cells into two equal halves. Thus, two daughter amoebae are produced from a single parent. One of them has the original contractile vacuole, while the other develops a new one. So students, we have discussed about the binary fission in amoeba. Okay,
amoeba due to its indefinite shape divide in any plane. Okay, in any plane it can divide. But what about those organisms that are having definite shape? जिनकी definite shape है वो कैसे divide करेंगे? ठीक है, सो वो कैसे divide करेंगे बेटे? फॉर एग्जाम्पल लेशमेनिया, it is the main causative agent of kala azar. It causes kala azar. Leishmania, it causes kala azar. It is having definite shape and it is also having flagella. Okay, let's see the diagram. This is Leishmania students. इसकी देखो ये डेफिनेट शेप होती है. इट इज़ हैविंग द फ्लैजिला, लॉन्ग वेप लाइक स्ट्रक्चर. सो अब इसकी बॉडी ऐसे डिवाइड थोड़ी ना करेगी, ठीक है. सो इसकी बॉडी कैसे डिवाइड करती है? इन अ डेफिनेट पैटर्न. वो एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में डिवाइड करती है सो दैट ऑल द पार्ट्स दे गेट डिवाइडेड इक्वली. Okay, so in the exam the question may be asked, name the organism that causes Kala Azar or main the cause of Kala Azar. You can write Leishmania. Or the question may be asked, what is the which type of asexual reproduction takes place or the mode of reproduction. So you can write binary fission. Or there may be a question that is how its division is different from binary fission in amoeba. Okay, so this is all about the binary fission. Next is the multiple fission. Multiple fission means division of single cell into many daughter cells. बहुत सारी daughter cells बना रहा और many multiple times जो है वो cell क्या करता है? divide करता है. ठीक है. The example is plasmodium. Plasmodium, it's a malarial parasite. It causes malaria, malarial parasite. ठीक है. अब क्या होता है? What happens? Malarial. Okay, malarial parasite. This is the malarial parasite. ठीक है, ये malarial parasite है. Now what happens? जब बेटे unfavorable conditions आती हैं, means जो इसकी ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है, तब ये क्या करता है? अपने आप को कवर कर लेता है विद अ हार्ड कवरिंग दैट इज कॉल्ड द सिस्ट, जिसको आप क्या कहते हैं? सिस्ट कहते हैं. दिस इज द सिस्ट कवरिंग. ओके, फिर क्या होता है? इस लेयर के अंदर अब न्यूक्लियस जो है दैट डिवाइड्स मल्टीपल टाइम्स. सो इट विल फॉर्म मैनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाता है. पर बेटे यहाँ क्या होता है? वहाँ पर बाइनरी फिशन में क्या हो रहा था? जैसे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था तो साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन हो रही थी, ठीक है. पर यहाँ क्या होता है? पहले न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड होके बन जाते हैं और उसके बाद जो है वो साइटोप्लाज्म डेवलप होता है या साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, सॉरी, डिवाइड्स एंड सराउंड्स द न्यूक्लियस. एंड व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस में कम, जब वो आती है, फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, दिस सिस्ट वॉल ब्रेक्स एंड ऑल द डॉटर सेल्स आर रिलीज्ड. सो इन दिस वे द प्लाज्मोडियम अंडरगोज मल्टीपल fission. Okay, the next type of asexual reproduction is fragmentation. Okay, fragmentation, the name suggests fragment, मतलब इसमें ऑर्गेनिज्म क्या होता है? फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है. फ्रैगमेंट्स मीन्स पीसीज में टूट जाता है. सो व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन? इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म अपॉन मैच्योरेशन, जब वो मैच्योर्ड हो जाता है, ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर पीसेस में टूट जाता है, जिसको आप क्या कह देते हैं? फ्रैगमेंट्स कह देते हैं. और हर एक फ्रैगमेंट जो है दैट ग्रोज इनटू द न्यू इंडिविजुअल. ओके, दैट इज फ्रेगमेंटेशन. उसको आप क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन कहते हैं. और ऐसा किस में होता है? स्पाइरोगायरा. किस में होता है? स्पाइरोगायरा. This is the fragmentation in Spirogyra. Students, the Spirogyra is named as Spirogyra due to the presence of this spiral shaped chloroplast. Okay, जो ये बीच में डार्क ग्रीन कलर्ड का स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर है, that is the chloroplast. That's why it is named as Spirogyra.
नाउ व्हाट हैपन्स इन इट, जैसे ये मेच्योर होगा इट डिवाइड्स नहीं, पीसेज में टूट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दैट आर कॉल्ड द फ्रैगमेंट्स एंड ईच फ्रैगमेंट, हर एक पीस जो है दैट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, सिंपली वो मेच्योर कर जाएगा और नया इंडिविजुअल बन जाएगा। ओके, बट ये तो था सेल डिवाइड, मतलब सिंपल सेल बाय सेल डिवीजन हो रही है, ठीक है। क्या ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पॉसिबल है? क्या हमारी बॉडी में ये पॉसिबल है? नो। In our body, the cells organized to perform specific functions in the form of tissues. Tissues organized to form organs, organs organized to form organ system and the organism. And all are doing the specialized functions, okay, specific functions they are doing. So क्या हमारी बॉडी में इस तरह से सेल डिवाइड हो सकता है और नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सभी सेल्स, सभी टिश्यूज, सभी ऑर्गन्स अपना अपना काम कर रहे हैं, ऑल आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, वो नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते हैं। सो देयर इज अ नीड ऑफ सम अनदर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, next type of asexual reproduction is regeneration. Okay, it is a type of reproduction in which the organism has the ability to regenerate their lost body parts from the broken pieces with the help of specialized cells. ठीक है, कि इसमें भी क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो पीसेस में टूट जाता है, बट हर एक पीस जो है वो न्यू इंडिविजुअल तो बनता ही है, पर जो उसके लॉस्ट बॉडी पार्ट है, मतलब जो उसमें नहीं है, वो बना लेता है, ठीक है, रीजनरेट इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट। तो ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं ये क्या करते हैं बेटे, दे इंक्रीज इन देयर नंबर, तो वो अपने नंबर में इंक्रीज होते हैं एंड अंडरगोज डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, अलग अलग टिश्यूज और अलग अलग तरह के सेल्स बन जाते हैं एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फुल ऑर्गेनिज्म। एंड this type of asexual reproduction takes place in hydra and planaria. Okay, planaria. अब planaria में कैसे होती है, let's see students, this is planaria. Okay, planaria क्या हो गया, body cut into pieces में टूट गई। अब क्या होगा, now the each piece will regenerate its lost body part. अब ये वाले पीस के लिए विच वन इज लॉस्ट बॉडी पार्ट, लोअर वन, तो ये लोअर वन अपना बना लेगा। ओके, जो मिडल वाला है उसके लिए क्या लॉस्ट है, अपर वन एंड लोअर वन, सो इट रीजनरेट्स बोथ द टू पार्ट्स, ठीक है, दोनों पार्ट्स बना लेगा। अब ये वाले पीस के लिए क्या है, पूरा ऊपर वाला पार्ट लॉस्ट है, तो वो ऊपर वाला बना लेगा। सो इन दिस वे द ईच पीस विल रीजनरेट इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट, ठीक है, वो अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू से, क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इस तरह से बॉडी पार्ट्स कट जाए और नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नो, द आंसर इज सेम एज वी हैव डिस्कस्ड इन द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट टिश्यूज, दे आर डूइंग देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। तो उनमें ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बॉडी ऑर्गन कटे और नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाए। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल डॉग दैट इज़ अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और अगर बाय चांस मान लो उसकी टेल कट जाती है, तो क्या वो टेल से नया पूरा डॉग डेवलप कर लेगा, प्रोड्यूस कर लेगा? नो। यू माइट हैव सीन द रीजनरेशन इन लिजर्ड ऑल्सो। लिजर्ड की टेल कट जाती है तो लिजर्ड टेल बना लेती है, टेल पूरी लिजर्ड नहीं बना लेती है, ठीक है, वो सिर्फ अपना लॉस्ट बॉडी पार्ट रीजनरेट करती है पर रिप्रोडक्शन नहीं करती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रीजनरेशन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बडिंग। बडिंग क्या होती है, इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन आउटग्रोथ, ठीक है, बॉडी के ऊपर एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं, ठीक है। फिर वो बड क्या करता है, मैच्योर होता है, इंडिविजुअल बन जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एंड देन इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी
पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है एंड स्टार्ट लिविंग एज अ न्यू इंडिविजुअल. ओके, दैट इज कॉल्ड बडिंग. बडिंग हमें देखने को मिलती है हाइड्रा में, दैट इज अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एंड ईस्ट ऑल्सो. ओके, द साइंटिफिक नेम ऑफ ईस्ट इज सैक्रोमाइसिस. SACCHAROMYCES, स्कैरोमाइसिस. ओके, दैट इज द ईस्ट. ईस्ट में भी होती है और हाइड्रा में भी होती है. सो लेट्स सी कैसे इनमें बडिंग होती है. दिस इज द हाइड्रा, टेंटिकल्स. ओके, दैट इज द ओरल ग्रूव. अब ये देखो बड अराइज हो रहा है. ठीक है, अब बड क्या होगा, ग्रो कर जाएगा एंड डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट and start living as a new organism. Students, now we have seen that how budding takes place in hydra. Okay, अब हम पढ़ते हैं yeast में कैसे होती है budding. So let's see the video. Yeast. Yeast is a unicellular fungus which reproduces asexually by an unequal division process called budding. Budding is a type of asexual reproduction in which a daughter individual is formed from a small projection, the bud, arising on the parent body. In yeast, buds arise as small cytoplasmic outgrowth from the parent cell. This is followed by the division of the nucleus. The nucleus of the parent cell divides into two, and one of the daughter nuclei migrates into the bud. The bud then enlarges and detaches from the parent cell by forming a constriction at the base. Students, you can draw this diagram of budding in yeast as there is no diagram given in your book for yeast. Okay, so क्या होता है बेटे, जैसे ही बड डिटैच होता है, जो डॉटर सेल बनता है स्टार्टिंग में, तो वो ओरिजिनल पेरेंट से क्या होता है, छोटा होता है. ठीक है, लेकिन वो ग्रेजुअली क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है इन द साइज एंड नया ऑर्गेनिज्म वो डेवलप हो जाता है. ठीक है, कई बार क्या होता है कि अभी वो डिटैच नहीं होता और उसके साथ और बहुत सारी चेन्स बर्ड्स की बननी शुरू हो जाती हैं. सो उसमें क्या होता है, बहुत सारे डॉटर सेल्स जो हैं वो नए बन जाते हैं. सो दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स और द न्यू सेल्स. ठीक है बेटे, बडिंग में एज वी हैव सीन इन द बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक सेल दो में डिवाइड हो गया, मतलब पेरेंट की आइडेंटिटी खत्म हो गई. पर यहाँ आप देख रहे हो पेरेंट की आइडेंटिटी खत्म नहीं होती है. पेरेंट डू नॉट लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी. ठीक है, उसने नया ऑर्गेनिज्म बनाया अपने से. ठीक है, पर पेरेंट की आइडेंटिटी यहाँ खत्म नहीं होती है. वहाँ पर क्या हो रहा था, पेरेंट की आइडेंटिटी खत्म हो जा रही है. Understood? What about the regeneration and fragmentation, students? क्या वहाँ पेरेंट की आइडेंटिटी है, रहती है या खत्म हो जाती है? Think about it. ठीक है? The next type of asexual reproduction is spore formation. ठीक है, spores क्या होते हैं? These are usually produced in sporangia. स्पोरेंजिया प्लूरल वर्ड है और सिंगुलर आप उसको क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं. अभी देखते हैं कि स्पोरेंजिया कैसे होते हैं. व्हाट इज स्पोर? स्पोर इज अ सिंगल और सेवरल सेल्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट एंड gives rise to new individual. ओके, दैट आर कॉल्ड स्पोर्स. अब स्पोर फॉर्मेशन हमें किस पे नजर आती है? ठीक है, द एग्जाम्पल्स आर Rhizopus, that is the bread mold, Mucor, Aspergillus, Penicillium, etc. These are fungus. ठीक है, तो आपको फंगस में ये नज़र आता है, स्पोर फॉर्मेशन फंगस में होती है. अगर आप बेटे ब्रेड को मॉइस्ट कंडीशंस में रखो, ठीक है, तो आपको कुछ दिनों के बाद जो आपको ब्लैक कलर की उसमें ग्रोथ नज़र आएगी, अगर आप उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे, दैट यू विल ऑब्जर्व सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, दीज आर हाइफी. हम इनको हाइफी कहते हैं. ठीक है, और हाइफी के ऊपर ये जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दीज आर कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर. इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहते हैं. ओके,
और जो इनके ऊपर ये ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, दैट इज़ कॉल्ड स्पोरेंजियम. अगर आप एक को लेबल कर रहे हैं तो देन इट इज़ कॉल्ड स्पोरेंजियम. ठीक है, और ये स्पोरेंजियम क्या बनाता है? स्पोर्स बनाता है, दीज टाइनी ग्रैन्यूल्स. ठीक है, ये टाइनी ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बहुत छोटे छोटे हैं. अंडरस्टूड? दैट आर स्पोर्स. स्पोर्स आर कवर्ड विद थिक कवरिंग. स्पोर्स किसके साथ कवर्ड होते हैं? थिक कवरिंग के साथ कवर्ड होते हैं. ओके, सो क्या होता है जब स्पोर्स बन जाते हैं, सो ये स्पोरेंजियम जो है ये बर्स्ट हो जाता है और सारे स्पोर्स स्प्रेड आउट हो जाते हैं. ठीक है, फॉर देयर प्रोटेक्शन दे आर कवर्ड विद द थिक कवरिंग. सो जब ये मॉइस्ट कंडीशंस के कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि ये मॉइस्ट कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द स्पोर्स जर्मिनेशन आप कह सकते हो, फॉर इनकी ग्रोथ के लिए आप कह सकते हो. सो स्पोर्स की ग्रोथ के लिए मॉइस्ट कंडीशंस आर फेवरेबल. तो जैसे ही ये मॉइस्ट कंडीशंस के कांटेक्ट में आता है, मॉइस्ट स्ट्रक्चर के कांटेक्ट में आता है या सरफेस के कांटेक्ट में आता है, सो ये थिक कवरिंग टूट जाती है एंड इट डेवलप्स इनटू द न्यू राइजोपस. ओके, नया ब्रेड मोल्ड बन जाता है. अंडरस्टूड? सो इन दिस वे स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स आर स्पोरेंजियम में बनते हैं. अगर आप प्लूरल इसको करेंगे लेबल, सो देन इट इज स्पोरेंजिया. ओके, एंड these spores are covered with thick coating and when they come in contact with the moist surface, ठीक है, that is a favorable condition. This thick coating और thick covering जो होती है that will burst, वो टूट जाती है and the spores they develop. Understood? So this is all about the today's session in which we have done the 5 main types of the asexual reproduction. 2 are left, that is vegetative propagation and tissue culture, that we will discuss in next session. Okay, so take care, bye bye.